Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। स्वागत है आप सभी का न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल को आतंकवादियों का अभयारण्य बना दिया, सुकांत मजुमदार ने कहा। अमित शाह के द्वारा अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से निकाला गया विरोध मार्च। कालिम्पोंग दौरे पर अनित थापा ने गोरखालैंड और नई पार्टी के गठन पर की बात। प्रधानमंत्री रोजगार मेले में क्षेत्र के 264 लोगों को मिली बेरोजगारी से मुक्ति, सौंपे गए नियुक्ति पत्र। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ममता बनर्जी ने बंगाल को आतंकवादियों का अभयारण्य बना दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने तृणमूल सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस राज्य में उग्रवादी तृणमूल से हाथ मिलाते हैं और जय बांग्ला कहते हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को आतंकवादियों का अभयारण्य बना दिया है। सीपीआई नेता मोहम्मद सलीम को आड़े हाथों लेते हुए सुकांत मजुमदार ने कहा, ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में उनके ससुराल वाले हैं और इसीलिए सीपीआई नेता को उनको लेकर काफ़ी कष्ट हो रहा है। उन्होंने सीमा सुरक्षा को लेकर कुछ राज्यों द्वारा जमीन उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया, जिससे घुसपैठ जारी है और देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। मोहम्मद सलीम खूब खुशी হচ্ছেন মনে মনে, তো বাংলাদেশে যা ঘটনা ঘটছে উনি দেখে খুশি হচ্ছেন, সেই জন্য উনি এই কথা বলেছেন। তাহলে ওনাকে আমি প্রশ্ন করতে চাই, বছরের পর বছর ওনারা ফিলিস্তিনে কি হচ্ছে সেটা নিয়ে এখানে মিছিল করতেন কেন কলকাতার বুকে? ও ফিলিস্তিনের মুসলিম ভাইদের জন্য বুক ফাটে আপনার, আর আপনার শ্বশুরবাড়ির তরফের হিন্দু লোকেদের জন্য বুক ফাটে না? পশ্চিমবঙ্গকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তার দল তৃণমূল কংগ্রেস জঙ্গিদের ব্রিডিং গ্রাউন্ড অর্থাৎ জঙ্গিদের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে। জঙ্গিরা এখানে মহা আনন্দে থাকছে আর তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে গলা মিলিয়ে জয় বাংলা করে লাফাচ্ছে এবং ভারত বিরোধী বিভিন্ন যে কার্যকলাপ সেই কার্যকলাপ চলছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে এগিয়ে বাংলার ডাক দিয়েছেন, আজকে সার্থক হলো। কাশ্মীরের জঙ্গি ধরা পড়ছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে, দক্ষিণ ভারতের জঙ্গি ধরা পড়ছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এই না হলো এগিয়ে বাংলার মডেল, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণাই এর পেছনে আছে। अमित शाह के द्वारा अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से निकाला गया विरोध मार्च। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर पर 17 दिसंबर को राज्यसभा में की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से विरोध मार्च निकाला गया। आज विरोध जुलूस सिलीगुड़ी बागा जतीन पार्क से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों की परिक्रमा करते हुए येरव्यू मोड़ पर समाप्त हुआ। इस मार्च में दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष पापिया घोष, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और अन्य समर्थक मौजूद थे। আমরা জানি বিজেপি এবং বিজেপি সরকার প্রতিনিয়ত যেভাবে ভারতবর্ষের সংবিধানকে ভূলুণ্ঠিত করছে, ক্ষতবিক্ষত করছে, তার চরম সীমায় আজকে পৌঁছে গেছে। গত কয়েকদিন আগে আমরা দেখলাম, সারা দেশবাসীর সাথে সারা বিশ্ব দেখেছে, সংবিধানের যে প্রণেতা, যিনি সবসময় জাতি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায় বিচারের পক্ষে এবং জাতি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে যিনি লড়াই করেছেন, বাবা সাহেব আম্বেদকর, যিনি আমাদের ভারতবাসীর গর্ব, তাকে একেবারে সংসদে দাঁড়িয়ে দেশবাসীর সামনে তাকে অপমান করা হলো, তার বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করা হলো। তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সারা পশ্চিমবাংলার সাথে সাথে দার্জিলিং জেলার সমতলে শহর গ্রাম মিলিয়ে 10টি ব্লকে আজকে আমাদের এই প্রতিবাদ মিছিল। আমরা একটাই চাওয়া, এই মিছিল থেকে আমাদের একটাই চাওয়া যে অবিলম্বে দেশবাসীর কাছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ক্ষমা চাইতে হবে। এবং আমরা দেখছি যে প্রতিনিয়ত তারা একের পর এক আমাদের যারা ভারতবর্ষের মনীষীরা, যাদের হাত ধরে আমাদের স্বাধীনতা এসছে, যারা স্বাধীনতাকে একদম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তাদের জীবদ্দশায়, তাদেরকে অপমান করে চলেছেন। এর আগে তারা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে করেছেন, আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও তারা অপমান করতে ছাড়েননি। আজকে সংবিধানের প্রণেতা
कालिम्पोंग दौरे पर अनित थापा ने गोरखालैंड और नई पार्टी के गठन पर बात की। उन्होंने कहा कि गोरखालैंड का मुद्दा किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, बल्कि गोरखा जाति का है। बीजेपी ने इस मुद्दे को समझ लिया है और राजू बिष्टा ने इस पर काम करने की बात की है। थापा ने यह भी कहा कि गोरखालैंड के मुद्दे पर पार्टी खोलना लोगों के सामने झुकने जैसा है। बीजेपीएम की विफलता पर उन्होंने खुद को पहाड़ियों का एकमात्र सफल नेता बताया और सुरक्षा स्थिति को अच्छा बताया। त्रिपक्षीय वार्ता की जरूरत नहीं बताते हुए उन्होंने बीजेपी से गोरखालैंड देने की संभावना जताई और परिसीमन मुद्दे पर एक सर्वदलीय समिति का गठन करने का प्रस्ताव रखा। कुन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड चाहिएको छैन, तर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ गोर्खाल्यान्ड चाहिँ पार्टीको मुद्दा बनाएर चाहिँ मान्छेको सायद आँखामा धुल जोग्ने मात्रै हो। अहिलेसम्म हामी झुक्यौँ, भोलि फेरि झुकिन्छौँ, तर अब मान्छे झुकिँदैन। तपाईँले सोद्धाखेरि पहिला एउटा घटना घट्यो भन्नुभयो नि, हुन्छ पाहाडमा एउटा यो घटनै हो, एउटै लिडरले घरिघरि पार्टी खोल्नु भन्ने घटनै हो त्यो एउटा। गोर्खाल्यान्ड त सबै कुरोले बुझिसकेको छ, गोर्खाल्यान्ड बुझेर नि सब्जेक्ट म्याटर होइन। अब बुझ्नु भएन, गोर्खाल्यान्ड सबैले बुझाएको अनि सबैलाई चाहिएको म्याटर हो। अनि कुनै एउटा पार्टीको मुद्दा बनाएर हुँदैन गोर्खाल्यान्ड, यो जातीय मुद्दा हो। मेरो हिसाबमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड चाहिँ जातीय मुद्दा हो, यो एउटा जातले माग्नुपर्ने हो, पार्टीले होइन। बुझ्नु भएन, यो मुद्दामा काम गर्नुपर्ने राजु बिष्टजी हो, एमपी साहब हो। हेर्नुहोस्, हामीले पार्टी खोलिरहनु पर्दैन। नयाँ होइन, तपाईँहरूले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। जलपाईगुड़ी स्थित बीएसएफ के राधाबाड़ी सेक्टर कार्यालय में भी रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने हिस्सा लिया। 264 युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में रोजगार दिया गया। बेरोजगारी से मुक्त हुई स्वीटी शर्मा और कृष्णा शर्मा ने खुशी जताई और बीएसएफ में सेवा करने का गर्व महसूस किया। कार्यक्रम में बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन युवाओं को नौकरी का अवसर मिलने की जानकारी दी। दिया जाती थी और मोदी जी के समय कितना नौकरी दी, तो डेटा दिखाता है। हमारी सरकार आज 45 थानों में 71,556 टोटल अपॉइंटमेंट लेटर्स आज डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इसी सेंटर से 200 से ज़्यादा हमने अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया और बिना किसी करप्शन के एलिगेशन बिना। पश्चिम बंगाल में जब कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, आपने देखा है पश्चिम बंगाल सरकार, इससे पहले भी उन्होंने रिक्रूटमेंट किया, कितने केसेस हुए, कितने लोग केसेस अभी भी लटके हुए हैं, कितने नौकरी करने वाले लोगों की फेट आगे क्या होगा, नौकरी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी अभी कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसी हालत है। लेकिन हमारी केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर बार ऐसे रोजगार मेला के द्वारा लगभग 71,000 या उससे अधिक अपॉइंटमेंट लेटर बांट रही है युवाओं को, और किसी ने अभी तक ऐसा कोई केस भी नहीं किया जिससे करप्शन के कोई चार्जेस आए। ये मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि। रेलवे पर सड़क को अवरुद्ध करने का आरोप के बाद मेयर ने किया 32 नंबर वार्ड का दौरा, कहा रेलवे से की जाएगी बात। पिछले शनिवार को टॉक टू मेयर कार्यक्रम में सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 32 के एक नागरिक ने रेलवे द्वारा सड़क अवरुद्ध करने और दीवार बनाने का आरोप लगाया। इस शिकायत के बाद मेयर गौतम देव ने आज इलाके का दौरा किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वार्ड पार्षद के साथ क्षेत्र का दौरा किया और रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए एक नगर निगम और रेलवे की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। এখানে ওই রেল ওদের বাউন্ডারি ওয়াল দিচ্ছে পাইপলাইনকে ছেড়ে ওদের এখানটা, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের 3টে বড় এন্ট্রি পয়েন্ট আর প্রায় 200 মিটার জায়গা, যেটা বাকিটা 16 ফুট 18 ফুট রাস্তা পাওয়া যাচ্ছে, অতটা অসুবিধা হবে না। কিন্তু এখানটায় 8 ফুট হচ্ছে, 8 ফুট হয়ে গেলে 8 ফুটে একটা গাড়িও ঢুকবে না, একটা অ্যাম্বুলেন্স ঢুকবে না, একটা ফায়ার সার্ভিসে ঢুকবে না। তো এটা একটা সমস্যা হবে। রেলের সাথে আমরা টেক আপ করেছি, রেল 3টে এন্ট্রি পয়েন্ট সেই জায়গাতে ওরা 18 ফুটে স্পেস দিচ্ছে। সে 18 ফুটের স্পেস দিলে সেটা ওদের সাথে আমাদের একটা রেজুলেশন থাকলে সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে 200 মিটার লম্বা। আর सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 39 में वार्ड उत्सव की शोभा यात्रा निकाली गई।
सिलीगुड़ी के हैदरपारा स्थित वार्ड नंबर 39 में वार्षिक मल्लिका महोत्सव की शुरुआत आज से एक रंगारंग शोभा यात्रा के माध्यम से हुई। इस शोभा यात्रा का आयोजन वार्ड के विभिन्न सदस्यों ने किया था, जिसमें सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने भी भाग लिया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद पिंकी शाह, वार्ड सचिव विवेकानंद शाह, तृणमूल नेता कुंतल रॉय और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। বলবেন আজ ওয়ার্ড উৎসবে? আমাদের বিভিন্ন ওয়ার্ড উৎসব শুরু হয়ে গেছে ডিসেম্বর আর জানুয়ারি মাস, এর মধ্যে বেশিরভাগ ওয়ার্ডে ওয়ার্ড উৎসব শেষ হয়ে যাবে। আজকে 39 নম্বর ওয়ার্ড তারা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে তাদের ওয়ার্ড উৎসব শুরু করলো। নানান রকম প্রোগ্রাম হবে, কালচারাল প্রোগ্রাম হবে, বিভিন্ন কম্পিটিশন হবে ওয়ার্ডের নাগরিকদের নিয়ে, ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্পোর্টস হবে, অন্যান্য খেলাধুলো কম্পিটিশনগুলো হবে। সেই অনুষ্ঠান হলো, এটা খুব ভালো। আমরা 47টা ওয়ার্ডে এই প্রোগ্রামটা খুব সুন্দরভাবে করেছি। सिलीगुड़ी में एक पत्नी ने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पत्नी का कहना है कि शादी के बाद से ही पति ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति विष्णु शाह को गिरफ्तार कर लिया। 2020 में चंपासारी निवासी विष्णु ने ज्योति शाह से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही दहेज के लिए दबाव डालने और उत्पीड़न शुरू कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया और उसे सिलीगुड़ी जिला अदालत में पेश किया गया। आरोपी ने अपनी पत्नी पर विवाहेतर संबंधों का आरोप लगाते हुए कहा, मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बबला-टाला क्रिकेट प्रतियोगिता कोरोना काल से बाद 25 दिसंबर से फिर से होगा शुरू। सिलीगुड़ी कॉलेज मैदान में 31 साल पहले शुरू हुई बबला-टाला क्रिकेट प्रतियोगिता कोरोना काल के बाद 25 दिसंबर से फिर से आयोजित की जाएगी। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने प्रतियोगिता की घोषणा करते हुए बताया कि यह प्रतियोगिता 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें सिलीगुड़ी की 5 टीमें सहित कुल 8 टीमें भाग लेंगी। कोविड-19 के कारण 4 साल से यह प्रतियोगिता नहीं हो पाई थी। बबला-टाला क्रिकेट अकादमी के प्रबंधन में यह आयोजन होगा, जिसमें पानु दत्त मजुमदार, प्रभा सूत्रधार, अमृत कुमार चौधरी, रसन्नम अप और तापस कुमार चक्रवर्ती जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल होंगे। আমরা এখানে এই যে টুর্নামেন্টটা এটা হবে, এটা অ্যাকচুয়ালি বাবলাতলা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নামে পরিচিত। এটা অতীত দিনের খেলোয়াড়, বর্তমান প্লেয়ারদের একটা সংস্থা যারা এই টুর্নামেন্টটা এটা করে। এটা 2019-এ কোভিড পরবর্তী পিরিয়ডে 4 বছর এই টুর্নামেন্টটা বন্ধ ছিল। এই বছর আবার তারা উদ্যোগ নিয়ে এই টুর্নামেন্টটা করছেন। এটা 35 ওভারের খেলা এবং এটা সাদা বলে খেলা হবে 35 ওভারের এবং রঙিন জার্সি থাকবে টিমগুলো। শিলিগুড়ি 5টা টিম সেরা টিম এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। 2024 comes to an end. But for savings, is there an end? Now that is Royal Oak's trend. Royal Oak Furniture's year-end sale up to 70% off, plus home decor gifts. In every media, this news should trend. पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाट। At Modi Public School, Siliguri, we turn inception to perfection. Admission is now open for nursery to class 4 and class 11, commerce, science and humanities. Discover world-class academic facilities, smart classes, a robotics lab, music and dance studios, and even culinary classes by Master Chef Joseph Rosero. Explore exceptional sports amenities guided by dedicated coaches. Residential facilities? We've got separate hostels, pastoral care, and nutritious meals by expert chefs. Call 9564777747. Modi Public School, Siliguri, your gateway to a brighter future. क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट। बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर,
आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, 1st फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with using 5 structure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। मिथुन चक्रवर्ती भाजपा के सक्रिय सदस्यता अभियान कार्यक्रम बैठक में हुए शामिल। हुगली के आयोजित कार्यक्रम में मिथुन चक्रवर्ती, पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी, भाजपा जिला अध्यक्ष तुषार मजुमदार और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य पार्टी की सदस्यता बढ़ाना और संगठन को मजबूत करना था। मिथुन चक्रवर्ती ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए बीजेपी को एक आंदोलन बताया और इसे सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। पुराने विवाद के चलते एक परिवार पर लगा पड़ोसी के एक परिवार को पीटने का आरोप, 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। सिलीगुड़ी के अंबिका नगर स्थित माइकल मधुसूदन कॉलोनी में पथराव का विरोध करने पर एक परिवार के सदस्यों पर पड़ोसियों ने जमकर हमला किया। इसमें परिवार के पिता, मां और बेटा घायल हो गए। घटना रविवार रात को ही, जब दिनेश बर्मन पर 2 युवकों ने छत से पत्थर फेंके। विरोध करने पर पड़ोसियों ने तेज धार हथियारों से हमला किया और घर में तोड़फोड़ की। पीड़ित परिवार ने दरवाजा बंद कर पुलिस को बुलाया, जिन्होंने उसे बचाया और अस्पताल पहुंचाया। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर एनजेपी थाने में शिकायत दर्ज की गई है। এতটা আক্রোশ কেন মনে হচ্ছে ওরা করে? আমার তো মনে হয় যে মোটামুটি 20 বছর আগের থেকে জমি নিয়ে আর কি একটু সীমানা নিয়ে ক্যাচাল করতো। তারপরে তো আমি বাউন্ডারি দিয়ে দিছি।
তাও মাঝে মাঝে ওনারা ওই যে জ্ঞানদা বর্মন যে আছে উনি আমাকে মাঝে মাঝে ঠেট দিত আর কি, গালাগালি করতো, হ্যাঁ ছাড়বো না অমুক তমুক বলতো, অনেক কিছু বলতো। হ্যাঁ, তবে এখান থেকে বাড়ি ভিটা ছাড়াও করবো এগুলি বলতো। সেটা কি কারণ মনে হচ্ছে? আমার তো মনে হয় ওইটারই কারণ। কিন্তু কালকে যখন ঢিল মারে আমাকে, আমি ছাদের উপর খরগোশটা খাইতে দিয়ে গেছি, তখন ঢিল মারতেছে ছাদের উপরে, তা ঢিলটা আমার পাশে এসে লাগছে আর কি, ঠ্যাঙের পাশে। তারপরে আমি যা বলতে গেছি, তারপরে ওর বাবাকে তখন আমাকে আর কি বলতেছে, না আমরা তো মারি নাই, কেন বলতিস না থেকে। আমি বললাম আমি তো নিজের চোখে দেখলাম যে মা তোরা তো ঢিল মারতেছিস মাঠ থাকি, কেন মারতেছিস? এই কথা বলাতে তখন ওরা আর কি সবাই আর কি ঝাঁপিয়ে পড়ছে আমাদের উপর। টার্গেট ছিল একদম মানে ভালো ক্ষতি করা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কতটা ক্ষতি হয়েছে মানে আপনাদের? আমাদের তো মুখ চোখ ফাটাই দিছে, দেখতেছেন তো আপনারা। কি দিয়ে মারলো? এই যে রড বাঁশ এগুলি নিয়ে আসছে। এখন কি চাইছেন? আমি বিচার চাচ্ছি এটা। পঞ্চায়েতকে বলছি আর কি। এর আগেও যে কয়েকবার করছিল যে আমাকে থ্রেট দিছিল, যে তখনও আমি পঞ্চায়েতকে বলছিলাম আর কি, পঞ্চায়েত জানে আর কি, কিন্তু এমনি কোনো লিখিত হয়নি আর কি তখন। गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की प्रधाननगर थाने की पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तस्कर कुछ बिहार से ट्रॉली बैग में गांजा कोलकाता ले जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन सिलीगुड़ी जंक्शन पर गाड़ी पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने सादे पोशाक में पहुंचकर दोनों से पूछताछ की और 15 से 16 किलो गांजा बरामद किया। गिरफ्तार तस्करों के नाम सोमनाथ सद्दार और शुभजीत हल्दर है। दोनों का घर न्यू बागरापुर इलाके में है। आज दोनों आरोपियों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। अवैध कब्जा हटाने के लिए जलपाईगुड़ी दिन बाजार में चलाया गया अतिक्रमण अभियान। जलपाईगुड़ी नगरपालिका के उपाध्यक्ष सकैत चटर्जी ने दिन बाजार अतिक्रमण अभियान के दौरान सवाल किया, जिन लोगों के पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड नहीं है वे लोग कौन हैं। जलपाईगुड़ी शहर के मुख्य व्यावसायिक केंद्र दिन बाजार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। नगरपालिका अध्यक्ष पापिया पाल और उपाध्यक्ष सकैत चटर्जी ने पुलिस के साथ इस अभियान की अगुवाई की। पापिया पाल ने कहा कि स्थिति में बदलाव न होने के कारण यह अभियान चलाया गया है। আমরা বারবার বাজারে তো এসেছি, কতদিন ধরে আপনারা দেখছেন, বেশ 4-5 বার করে আমরা নিজেরা পথে হেঁটে এনাদের অনুরোধ করেছি যে রাস্তাকে মুক্ত করুন, মানুষের চলাচলের উপযুক্ত করুন। শেড বানিয়ে রাস্তার ভেতরে মাল না রেখে রাস্তার বাইরে রেখে সেটাকে গুদামে পরিণত করে, প্রকৃত দোকান যার দেখা যাচ্ছে সেটাকে গুদামে পরিণত করেছে এবং রাস্তায় শেড দিয়ে, অবৈধ শেড দিয়ে পুরসভার রাস্তা দখল করে তারা দোকানদারি করছে। মানুষকে চলাচলের উপযুক্ত করে দিতে হবে। আমরা বারবার পথে হেঁটেছি, আজকে আমরা কিন্তু ভেঙে দিতে পারব না। কিছু কিছু যে শেড বাড়িয়ে রাস্তাকে দখল করে রেখেছে, আমাদের রাস্তার কাজ এর মধ্যেই শুরু হতে যাচ্ছে। তো সেখানে রাস্তা যদি আমরা পরিষ্কার না রাখতে পারি, আমরা কোন রাস্তা করব? প্রিভার ব্লকের রাস্তা আমাদের বাজারের ভেতর দিয়ে আমাদের কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে এবং তার জন্য রাস্তা ক্লিয়ার করা প্রয়োজন। সেই জন্য আজকে আমরা পথে নেমেছি। ভাইস চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল, মার্কেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত আমাদের স্বরূপ মণ্ডল আছেন, এমসিআইসি এবং এখানকার কাউন্সিলর সরিতার এক্স কাউন্সিলর আছেন নিপু, এবং সকলকে নিয়ে আমরা মানুষের সুবিধার্থে যাতে মানুষ চলাচল করতে পারে। অনেকে শুনেছেন, অনেক দোকানদার শুনেছেন আমাদের কথা, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শেড দিয়ে ট্রিপাল টানিয়ে এখনো রাস্তা দখল করে আছে। আমরা আজকে পথে নেমেছি সেই শেডগুলোকে ভেঙে দিয়ে রাস্তা। बांग्ला आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने आज वीडियो को ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के गोलबाड़ी इलाके में कई अल्पसंख्यक लाभार्थियों के नाम सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से सूची से हटा दिए गए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय ने इस मामले में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। इस पर तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अल्पसंख्यक सेल ने आज वीडियो कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলা যে আবাস যোজনা আমাদের সিএম ম্যাডাম দিচ্ছে এরই বিষয় নিয়ে। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেকটা আমাদের সদর ব্লক 1-এ 8টি অঞ্চল আছে। 8টি অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন বুথের স্তরে প্রতি জায়গায় ঘরের যে একটা ঘোটালা চলতেছে, ঘরকে নিয়ে কেন্দ্র করে। বিশেষ করে এটা আমরা আজকে জানার জন্য এসেছি এই কারণে যে এই ঘর
পূর্বে এমন অনেক লোক আছে, গরিব লোক, তাদের লিস্টে নাম ছিল, 1 নাম্বার লিস্টে ছিল, 2 নাম্বার লিস্টে নাম ছিল, কিন্তু বর্তমানে 3য় লিস্টে বা ফাইনাল লিস্টে তাদের নাম নেই। আমরা জানতে চাচ্ছি যে তাদের নাম কে বা কারা কাটলো, কার নির্দেশে সে অফিস স্টাফ কাটলো বা কেন কাটা হলো। আর যাদের আছে এরকম এমনও অনেক ব্যক্তি আছে তারা সচ্ছল ফ্যামিলি, যাদের প্রভাব আছে এবং বাড়িঘর ভালো, তাদের নাম এখনও ওই লিস্টের মধ্যে যুক্ত। आवास योजना की प्रक्रिया शुरू होने से लोगों में देखी जा रही खुशी। मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताने के लिए निकाली गई बाइक रैली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 12 लाख परिवारों को आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए देने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे राज्य के निवासियों में खुशी है। इस योजना के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं ने बाइक जुलूस निकाला। जुलूस राजबंध स्टेशन से शुरू होकर गोपालपुर और आरा इलाके में समाप्त हुआ। সরকার বাংলাদেশে বাড়ি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে রাজ্য সরকারকে বঞ্চিত করেছেন, তার জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গরিব মানুষের কথা চিন্তা ভাবনা করে তিনি তার নিজের অর্থ ভাণ্ডার থেকে এই যে 12 লক্ষ বাংলা যোজনা বাড়ি, তাদের 50% টাকা এই কয়েকদিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। তার জন্য আমাদের দিদিকে, আমাদের গরিব মানুষের কথা যে চিন্তা করেছেন উনি, তার জন্য দিদিকে ধন্যবাদ জানানো এবং আমাদের গরিব মানুষকে এত যে সাহায্য করেছেন তার জন্য আজকে আমাদের এই মিছিল। সব আমাদের যারা উপভোক্তা তাদেরকে আমাদেরকে জানানো যে আমাদের দিদি আমাদের জন্য এই করেছে। আমাদের রাজবাঁধ এই যে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে আমাদের আরা গ্রাম পর্যন্ত। মানুষ যে হতাশ হয়েছিল তাদেরকে কি বলবেন? মানুষ হতাশ হয়েছিল, তাদের জন্যই তো আজকে এত প্রচার। আপনার নাম? नवकुमार सामंत। कुछ बिहार में एक घर से 2 शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि बेटे ने अपने पिता और बड़े भाई की हत्या की। दोनों शवों को घर के सेप्टिक टैंक और शोकेस से बरामद हुए। पिता बाबुल चंद वैश्य 65 वर्षीय शोकेस से मिला, जबकि बड़े भाई का शव सेप्टिक टैंकर से निकाला गया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सेप्टिक टैंक से शव निकालने का काम जारी है। आरोपी बेटा प्रणव कुमार वैश्य फरार है। খুনের ঘটনার তদন্তে এসে পুলিশ আরেকটা বডি পেয়েছে, কি রয়েছে বিষয়টা? না, দ্বিতীয় যেটার কথা বলছেন সেটা এখন আমরা শিওর নই। আমাদের একটা প্লাস্টিকে প্যাঁচানো কিছু রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, সেটাকে পুলিশ দেখি তারপরে বলতে পারবো সেটা কি। কিন্তু যেটা ঘটনা একটা হয়েছে, আমরা একটা ডেড বডি পেয়েছি, সেটাকে আমরা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠিয়েছি। স্যার কি অবস্থায় ছিল ডেড বডিটা? শোনা যাচ্ছে ছেলেই নাকি বাবাকে খুন করেছে। এটা তদন্তের বিষয়, আমরা তদন্ত করে দেখছি সবগুলো। বডিটা কি অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে? বডিটাতে মারধর রয়েছে, এরকম রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। শোনা গেল শোকেজের মধ্যে ঢোকানো ছিল। হ্যাঁ স্যার ছেলেটা যে অভিযুক্ত সে কি অ্যারেস্ট হয়েছে না পলাতক? স্যার সে পলাতক। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव पे। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।